digital to analog converters. Okay, first of all, what is the requirement of this type of converter? Okay, if we have to transmit any data and if it is in an analog form, so analog signal having the numbers of disadvantages like having the larger bandwidth and less noise immunity, means उसमें नॉइस क्या होगा, ज़्यादा एंटर होगा जब वो चैनल से पास होगा तब. ठीक है. So at the transmitter side, we just simply convert analog to digital, and of course digital having only 2 bits, 0 and 1, so of course less bandwidth is required and it gives the better immunity in regards of noise. Okay, so at the transmitter side we just convert analog signal into digital form. After that, your signal transmitted by some channels. At the receiver side, again what is our aim कि हमें तो एनालॉग सिग्नल ही चाहिए, but only ease of transmission we just convert analog into digital. So again at the receiver side we have to convert our signal from digital to analog. So these are the requirement at the communication purpose. This is the analog and to digital and digital to analog converters are most important. Okay, topics to be covered. So digital to analog converter. Okay, specification for D2A converter. Okay, now two types of converter, digital to analog converter. So digital to analog converter having the numbers of types after the specification, means parameters of D2A converter. Examples of D2A converters ICs, means we have to explain one IC regarding D2A conversion. उसके बाद analog to digital converter, उसके types, again specification or parameters of A to D converter and examples of A to D converter IC. Okay, these are the main topics to be covered. As I explained, what is the requirement, how why we convert our analog signal into digital form, वो यहाँ पे mention किया हुआ है, to provide gives the better accuracy, reduce noise as well as the less bandwidth is required in digital. That's why we convert analog signal into digital signal at the transmission time. Okay. Okay, this is the block diagram. So analog input given to the anti-aliasing filter. Now first of all, what is anti-aliasing? Actually वो अभी आगे आएगा. When we are performing A to D conversion, so first of all आपके पास एक sine wave है, means analog signal. So we have to divide this analog signal into numbers of portion. It is called as a sampling. उसको horizontal, sorry, vertically उसको divide कर देना. So it is sampling. And if we quantize our full screen by horizontal levels, उसमें vertical आएंगे sampling में, and in quantization अगर हम quantization करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन को horizontal slope में क्या करना है, divide करना है, horizontal slot में divide करना है, depend upon quantization level कि आपने quantization level कितने लिए हैं. Like अगर 4 bit में मुझे convert करना है तो 2:4 means 16 quantization levels are required. So आपका सिग्नल कौन से लेवल में आ रहा है कि लाइक 5th नंबर के लेवल में आ रहा है. सो वी हैव टू जस्ट फॉर पर्टिकुलर सैंपल व्हाट इज द डिजिटल वैल्यू, तो 5th का बाइनरी. ओके, नाउ व्हाट इज एंटी एलियासिंग कि अगर लाइक आपने सैंपलिंग किया बट बिकॉज ऑफ चैनल नॉइज, यहाँ पे चैनल प्रेजेंट है देखो जिसके थ्रू मैं ट्रांसमिट करूँगा. ओके, अगर चैनल नॉइज प्रेजेंट है मीन्स सैंपलिंग में क्या होगा, सैंपलिंग है वो ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे में. ओके, आपने सैंपल किया, देयर आर नंबर्स ऑफ सैंपल, बट इफ इट इज ओवरलैपिंग, सैंपल्स का अगर ओवरलैप हो जाता है, सो व्हेन दिस पर्टिकुलर सैंपल अगेन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग, सो इट गिव्स द रॉन्ग आउटपुट, क्योंकि वो एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज सैंपल क्या हो चुके हैं, ओवरलैप हो चुके हैं. सो टू रिमूव दिस, एंड इट इज कॉल्ड एज एलियासिंग, ओवरलैपिंग ऑफ सैंपल, उसको रिमूव करना है एलियासिंग को. सो वी हैव टू जस्ट यूज द एंटी एलियासिंग फिल्टर बिफोर सैंपल एंड होल्ड सेल. आफ्टर दैट एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन, अगेन आपका सिग्नल चैनल थ्रू पास होगा, सो ऑलवेज सम नॉइस इज ऑलवेज देयर. सो वी हैव टू प्री प्रोसेस अवर सिग्नल बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. अगेन D2A कन्वर्जन होगा एंड स्मूथिंग फिल्टर. ओके, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी कन्वर्जन, ओके, any, you can't find like a perfect analog output, always some noise is always there. So we have to remove this noise by using
स्मूथिंग फिल्टर. सो एट लास्ट एट द रिसीवर साइड, ये आपका ट्रांसमीटर का होगा पूरा और ये रिसीवर का होगा. सो एट द रिसीवर साइड we just find the analog output. It is simply one type of block diagram कि how we can convert digital to analog. यहाँ पे आपको उल्टा दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें D2A दिया हुआ है, लास्ट में A2 दिया आएगा. ठीक है. सो नंबर्स ऑफ बीट मुझे यहाँ पे देना है. सम लॉजिक इज देयर in DAC. So by using this logic, our binary waveform converted into analog waveform. Okay. And if it is a 4-bit DAC, so of course 2 raised to 4 means 16. So how many possible combination of bits? 16. Okay, 4-bit आप use कर रहे हैं तो 16 possible combination are always there. So by using this 16 level, we also find the 16 analog output. Analog output की वैल्यू भी कितनी आएगी? 16. ओके जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 0 अप टू 1 1 1 एंड 1. सो टोटल 16 लेवल्स. ओके सो नाउ यहाँ पे आपको सिंपल दिया है, वैसा सिंपल नहीं होगा, सिंपली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बोला है. ओके विदाउट यूजिंग कन्वर्जन लॉजिक क्या किया है यहाँ पे सिंपली कि लाइक 1 तो उसका डेसिमल क्या होगा 1, इसका 2 3, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 5, इन दिस वे 15 तक गए. ओके सो आपने क्या किया, सिंपली ये बाइनरी था उसका डेसिमल फाइंड किया, तो उस डेसिमल को भी क्या एज्यूम किया है कि इट इज एनालॉग सिग्नल. सो 0 to 15 तक वो जाएगा. ऑफ कोर्स एनालॉग वैल्यू कितनी मिलेगी 0 to 15. वाई? क्योंकि यहाँ पे 0 to 15 क्या लिया है मैंने, पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ओके एंड दिस VOF इट इज अ फुल स्केल वोल्टेज. उसका मीनिंग क्या है कि आपको 15 कब मिल रहा है, व्हेन वी आर गिविंग 1 1 1 1 मींस ऑल बीट्स आर एक्टिव, देन वी कैन से आवर एनालॉग signal flow in a maximum means output or in a maximum mode you can say. So it is a full mode, it is a full scale voltage. So 15 it is your full scale voltage. Okay, and it is simply like output value change by changing the LSB. Of course if you see here, so B4 it is your LSB and B1 it is your MSB. So LSB है वो continuously change होगा. अगर आप देखेंगे ना, देखो 0 to 1 हुआ, 0 to 1 फिर वापस 0 to 1 वापस 0 to 1, तो उसकी वजह से आउटपुट में जो भी चेंज आ रहा है वो सिंपली यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है. अदरवाइज इट इज देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट दिस. सिंपली आपको डिजिटल वैल्यू और ये एनालॉग वैल्यू जो आ रही है. एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस DAC और स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस DAC इज ऑल्सो द लीनियरिटी. आप जो भी कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग, वो कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए. ओके ओके मैंने आई थिंक इसमें इतना ही किया हुआ है. मैं डायरेक्ट PDF में से करवा रही, इसीलिए कि इसमें अगर मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ तो वो जूम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये टेक्निकल पब्लिकेशन की एक बुक है जिसकी स्कैन कॉपी है. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओनली अवेलेबल इन आनंद कुमार, मोरिस मेनो में प्रेजेंट नहीं है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन यूज लाइक टेक्निकल एज वेल एज आनंद कुमार बुक. ओके ओके सो ये मैंने जो स्नैपशॉट लिया था वही है, इसमें जूम हो सकता है, उसमें वो पॉसिबल नहीं था, दैट्स वाई मैं डायरेक्ट इसमें से ही आपको करवा रही हूँ. ओके नाउ स्पेसिफिकेशन. फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, सिंपली इंट्रोडक्शन की व्हाट इज D2A. नाउ ऑन लाइक हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ DAC मीन्स ऑन basis of which parameter we can say ki like performance if this DAC is means higher compared to another DAC. So these are the performance parameter, or you can say it is a performance specification. Okay, these are the important. Okay, इसको normally आपको definition में पूछ सकता है. So resolution we can define by two way, and another name of resolution is also the step size. इसको आप step size भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू क्या है, अभी रिजोल्यूशन मीन्स 2 raised to n. इफ इट इज योर n bit DAC then how many possible combinations, so it is a 2 raised to n. n bit है, so 2 raised to, अगर 4 bit है then 2 raised to 4 means 16. so resolution आपका कितना होगा 16. you can like write the equation of resolution by two way. it is the first way and it is the second way. in a second way we have to just assume ki like
What is the change in our output voltage by changing one LSB? मैंने आपको बताया LSB में continuously change हो रहा है 01 01 01. So because of this, what is the which effect is generated in your output, which is represented by this VOFS divided by 2 raised to n minus 1. VOFS, it is a full scale voltage which I explained, and 2 raised to n minus 1 वो आपको पता ही है. इट इज लाइक 2 raised to 4 मैंने लिया तो 16 minus 1 मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 15. ओके, as per the first definition, if we take 8-bit DAC, so what about my resolution? 2 raised to s means 256. okay, but full scale output voltage, अगर आपको full scale output voltage कुछ भी नहीं दिया हुआ है, then you have to consider a maximum कि 2 raised to 8 मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फुल स्केल वोल्टेज क्या होगा 256. बट अगर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इज दिस, देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर. एंड देन बाय सेकंड डेफिनेशन रिजोल्यूशन क्या होगा, तो कि 10.2 डिवाइड बाय 2 raised to 8 minus 1. So it is at 40 milliwatt per LSB change, means per what is your output change by per LSB change. And some important like definition is also there. It is a V0 is equal to resolution into D. अगर आपको output voltage find out करना है, then it is a multiplication of decimal. So of course if a binary is given, then you have to convert to decimal, after then multiply with resolution, which give you output voltage. D is equal to decimal value of the digital. D is equal to क्या होगा, decimal value. Hello, my screen is visible na? Hello, hello, Yes, ma'am. okay. So V0 is equal to resolution into D, and D is equal to decimal value of the digital input. Okay, so V0 is equal to क्या होगा आपका output voltage. Okay, so अगर D and V0 है तो we can resolution है तो we can find V0. Okay, now next parameter is the accuracy. Accuracy normally यहाँ पे क्या लिया गया कि like there is a comparison of actual output voltage with expected output. It is expressed in percentage. Ideally the accuracy should be at a worst case में accuracy क्या होगी, तो कि plus or minus 1/2 of its LSB. इसका मतलब क्या है, LSB में कितना चेंज हो रहा है वो किस में रिफ्लेक्ट होता है, आपके आउटपुट में. सो इट इज ए प्लस और माइनस 1/2 ऑफ योर रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन कितना था, VOFS डिवाइड बाय 2 raised to n minus 1 डिवाइड बाय 2, विच इज योर एक्यूरेसी. ओके, एट द वर्स्ट केस की यहाँ पे बात है, कितना चेंज होगा आउटपुट वोल्टेज में as compared to expected. It is a 1/2 of output voltage or resolution per LSB change. So it is a VOFS divided by 2 raised to n minus 1 into क्या होगा 2, because it is a plus or minus 1/2 of its LSB. It is nothing but क्या resolution. So it is a resolution divided by 2 ultimately. So we can find accuracy, it is a 20 milliwatt. Settling time, or you can say it is a conversion time. Means how many time is required or how much time is required to your system be settled down. So it is called as a settling time. Means if we starting from 0000, so उसको 1111 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, it is called as a settling time. Okay. Dynamic range, so it is simply a ratio of largest output to the smallest output excluding zero. आपका लार्जेस्ट आउटपुट क्या है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मतलब आउटपुट, जीरो को नहीं लेना है. लाइक अभी आगे गया तो उसका 15 मैक्सिमम था, मिनिमम क्या होगा 1, तब की डायनेमिक रेंज क्या होगी 1 to 15. एंड इट इज इफ इट इज एक्सप्रेड इन dB, सो इट इज a 20 log 2 raised to n, so it is 6n around. Offset error means it is simply represent the difference between ideal कन्वर्जन क्या होगा एंड एक्चुअल कन्वर्जन क्या हुआ है. सो एट जीरो लेवल वी जस्ट टेक द डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज ए ऑफसेट एरर. ऑफसेट एरर इज डिफाइंड एज द नॉन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो. ओके, दोनों इनपुट जब जीरो है, सो कौन सा नॉन जीरो लेवल आपको मिल रहा है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑफसेट एरर. ठीक है,
गेन एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन स्पेसिफिकेशन में। नॉन लिनियरिटी विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट इज लिनियरिटी, कि कन्वर्जन क्या होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोई भी लाइक रैम्प या कुछ भी नहीं होना चाहिए या स्पाइक, वैसा नहीं होना चाहिए, इट इज कम्प्लीटली लीनियर होना चाहिए. सो सम फैक्टर्स आर देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस नॉन लिनियरिटी. वन, इट इज अ नॉन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर. अब ये कहाँ से आया एक्चुअल में, दिस D2A कन्वर्जन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो टाइप्स आएंगे ना उसमें रजिस्टर एंड स्विचिंग का एक डायग्राम, तो वो यहाँ पे बताया गया. एक तो नॉन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर एंड नॉन आइडियल इलेक्ट्रॉनिक स्विच की वजह से ये लीनियरिटी जनरेट हो सकती है. नॉन लीनियरिटी, स्टेबिलिटी. सो मुझे कैसे सिस्टम बनानी है कि लाइक इट परफॉर्मेंस is always remain same if we are changing temperature, age, power supply or any other variation. So you can say your system is stable. Okay, so performance of converter changes with respect to temperature, age, power supply variation. So all the relevant parameters such as the gain, linearity must be specified over the full temperature and power supply range. फुल टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है वहां तक हम उसको स्पेसिफाई करना है, उस मतलब ऑफसेट गेन. एंड पावर सप्लाई को भी फुल दे देना है, उसके बाद उसको स्पेसिफाई करना है ऑफसेट है, गेन है, सारे पैरामीटर्स. सो अगर कुछ भी वेरिएशन होता है सो योर सिस्टम बिकम क्या होगी, स्टेबल होगी, क्योंकि हमने फुल टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई पे उसको स्पेसिफाई किया हुआ है. तो कोई भी चेंज होगा फिर भी आपकी स्टेबल सिस्टम क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी. ओके, नाउ एग्जांपल. Normally this type of example asked in 3 marks. 8-bit DAC has a output voltage range that is 0 to 255. आपको 8 bit दिया, so n is equal to 8. Define its resolution in 2 way. दोनों तरीके से आपको इसको डिफाइन करना. एक तो 8 मुझे दिया हुआ है, so फर्स्ट वे क्या होगा, we simply write 2 raised to n, तो क्या होगा 256. दूसरी डेफिनेशन क्या थी, VOFS डिवाइड बाई 2 raised to n minus 1. तो VOFS क्या होगा, यहाँ पे आपको फुल स्केल रेंज दी हुई है, ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम है, एंड दिस मैक्सिमम इट इज आवर फुल स्केल वोल्टेज. सो इट इज अ 2 पॉइंट कितना है 55. सो राइट हियर 2.55 2 raised to 8 minus 1, so you can find this. Okay, 8-bit DAC has a resolution अब आपको दे दिया, आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है V0. सो V0 इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, रिजोल्यूशन इनटू डी. डी मीन्स क्या है, बाइनरी लिया हुआ है, उसका डेसिमल फाइंड आउट करना है. आपको क्या बोला है, फॉर 8-bit D2A कन्वर्टर हैज द रिजोल्यूशन MV पर बिट, फाइंड द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग डिजिटल इनपुट्स. आपको दोनों डिजिटल के लिए आपको क्या करना है, काउंट करना है. मैंने फर्स्ट लिया, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया. इसको काउंट करके देखो, ये 138 आ रहा है. इफ यू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, अगर मैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ, सो 138 आ रहा है. मुझे बताओ कैसे कन्वर्ट करना है, 2 raised to 0, और ये क्या होगा 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 3 भी एक्टिव है, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 and 2 raised to 7. So it is a 2 raised to 7 plus 2 raised to 3 plus 2 raised to 1. 138 आ रहा है. कोई तो बताओ आ रहा है कि नहीं, बाइनरी का डेसिमल. आपको पूछ रही हो तो आंसर भी नहीं दे, ऑल आर मेंटली एब्सेंट. ओके,
एटलीस्ट बोल दीजिए, मेरी स्क्रीन एक्टिव होती तो मुझे नहीं दिखाई नहीं देगा। हेलो, किसी ने काउंट किया? बाइनरी टू आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है, बाइनरी तो आपको आता है, बाइनरी डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। So it is a 138 and 138 multiply with resolution. तो resolution क्या है आपका? 10 into 10 raised to minus 3. So multiply with this, so we can find V0. ठीक है, चलो मुझे नेक्स्ट का फाइंड करके बताओ। इसका फाइंड करके मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा। इसका बाइनरी क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? 0 0 0 1 0 0 0। इसका डेसिमल फाइंड करके बताओ। बाइनरी इज गिवन, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू? Convert this number into decimal. प्लीज कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल। किसी को भी नहीं आता बाइनरी का डेसिमल? जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलता मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। कन्वर्ट दिस नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल प्लीज। आपको पूछ रही हूँ, 37 स्टूडेंट प्रेजेंट है, किसी को भी ये नंबर में जो दिखा रही हूँ 0001 0000 उसका डेसिमल फाइंड करके बताओ। 16. Yes, it is a 16. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. 2 raised to 4 means क्या होगा? 16. And this 16 multiply with resolution. So it is a 10 into 10 raised to minus 3 which give me the V0. Okay. Next one, 8-bit DAC has the resolution of 20 millivolt per LSB. तो आपको क्या दिया है? 20 millivolt resolution दे दिया। अब VOFS आपको फाइंड करना एंड V0 फाइंड करना इफ इनपुट इज दिस। ओके, तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रिजोल्यूशन एंड VOFS। ओके, VOFS आपको फाइंड आउट करना है, रिजोल्यूशन आपको दिया होगा। ओके, कितने बिट का बोला है? 8 बिट। तो वी सिंपली राइट 20 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 raised to 8 minus 1. सो वी कैन फाइंड VOFS। आपको फुल स्केल वोल्टेज क्या मिला? 5.1। नाउ व्हाट अबाउट दैट V0? आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करेंगे? डेसिमल। सो 2 raised to 7 पे 1 है, सो इट इज a 128। तो इसका डेसिमल क्या होगा? 128। सो 128 मल्टीप्लाई विथ रिजोल्यूशन 20। इक्वेशन क्या है? V0 की रिजोल्यूशन इंटू D 20 10 raised to minus 3 which is resolution which give you the V0. VOFS तो आपको डायरेक्टली इस इक्वेशन से मिल जाएगा एंड V0 है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है, आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है, बट इक्वेशन याद होनी चाहिए। Okay, find out the step size and analog output for 4-bit R2R LED DAC when input is this and this. Assume reference voltage, it is a 5 volt. Okay. आपको बोला है कि यहाँ पे R2R LED DAC, it is one of the type of the DAC. इसकी एक्चुअल में एग्जाम्पल पे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रही है। ये टाइप, ये एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद इसके टाइप्स आएंगे DAC के। उसमें एक टाइप्स है R2R LED। ओके, आपको 4 बिट बोला है तो n इज इक्वल टू 4। V रेफरेंस बोला है, इट इज नथिंग बट योर फुल स्केल वोल्टेज 5 वोल्ट। ओके, सो रिजोल्यूशन क्या होगा? रिजोल्यूशन इज इक्वल टू VOFS डिवाइड बाय 2 raised to n minus 1। इट इज 4, इट इज 5, सो वी कैन फाइंड। ओके, नाउ बहुत इजी है। फाइंड आउट क्या बोला था आपको? स्टेप साइज। मैंने आपको बोला था कि रिजोल्यूशन, अनदर नेम ऑफ रिजोल्यूशन, इट इज अ स्टेप साइज। तो अगर आपको यहाँ पे स्टेप साइज बोला है तो अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है आपको? रिजोल्यूशन। दूसरा आपको बोला एनालॉग आउटपुट, सो इट इज V0। V0 की इक्वेशन आपको पता है, रिजोल्यूशन इनटू D।
रिजोल्यूशन आपको मिल चुका है 1/3। ओके, 1/1 ये वैल्यू लेनी है और V0 फाइंड करना है। फर्स्ट इसको ले लेते हैं 1000, तो उसका डेसिमल क्या होगा 8, सो इट इज 8 इंटू रिजोल्यूशन, सो वी कैन फाइंड। नेक्स्ट क्या है 1111, ऑफ कोर्स इसका डेसिमल क्या होगा 15, 15 मल्टीप्लाई विथ रिजोल्यूशन, सो वी कैन फाइंड V0। Okay, now 12-bit DAC has a step size of 8 millivolt. Determine the full scale output voltage, percentage resolution. Also find the output voltage for input of this. Okay, आपको स्टेप साइज दे दी 8 मिलीवोल्ट, सो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, रिजोल्यूशन आपको दे दे। इक्वेशन क्या थी रिजोल्यूशन की, VOFS डिवाइड बाय 2n-1। ओके, तो V ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, रिजोल्यूशन इंटू 2n-1। रिजोल्यूशन मतलब स्टेप साइज, तो आपको क्या दिया 8 मिलीवोल्ट, 212। क्यों 12 लिया है मैंने, बिकॉज मुझे 12 बिट बोला है, दैट्स व्हाई, सो वी कैन फाइंड। ओके, परसेंटेज रिजोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि 8 मिलीवोल्ट एक्चुअली में मेरी स्टेप साइज थी। ओके, एंड फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज कितना है, सो इट इज 32.76 मल्टीप्लाई बाय 100 विच गिव मी द percentage in resolution. It is a simply you can say it is a step size divided by क्या होगा percentage resolution, full scale आपको जितना भी मिला है। इसका मीनिंग क्या है कि फुल स्केल मतलब फुल स्केल तक पहुंचने के लिए मुझे एवरी टाइम स्टेप साइज चाहिए, वो आपको क्या दी है 8 मिलीवोल्ट। ओके, सो इट इज ए लाइक वन टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ परसेंटेज रिजोल्यूशन। आउटपुट वोल्टेज, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, डेसिमल, तो डेसिमल ये है इनटू रिजोल्यूशन कितना दिया है 8 मिलीवोल्ट, वो मुझे क्या देगा आउटपुट वोल्टेज। V0 इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इंटू D, तो ये मेरा D है और ये मेरा रिजोल्यूशन है विच गिव मी द V0। ओके, नेक्स्ट इट इज ए बेसिक कन्वर्जन टेक्निक्स। दिस टू टेक्निक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी एक आपको पूछ सकते हैं। अभी जो आगे जो डेफिनेशन दी वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस बेसिक कन्वर्जन टेक्निक एंड एग्जाम्पल आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट वन, इट इज अ बाइनरी वेटेड रजिस्टर D2A converter. Okay, why this particular converter name, it is a binary weighted resistor, because we are using weighted resistor 2R, 4R, 8R, 16R, 32R. So this 2, 4, 8, 16, this is the weights of the resistor, so we are using the weighted resistor, that's why using it is called as a binary weighted resistor D2A converter। यहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है। अब क्या किया है वो देखो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विचेस ली है मैंने कितनी 4, क्यों, क्योंकि बाइनरी में कितना दे रही हूँ, बाइनरी हम कितना दे रहे हैं 4, कितना दे रहे हैं यहाँ पे 4। स्विच क्यों दी है, क्योंकि हर बार मैं 1 नहीं दूंगी ना और हर बार 0। स्विच ओपन है मतलब वी कैन एज्यूम B1 इज इक्वल टू 0, स्विच क्लोज है तो वी कैन एज्यूम B1 इज इक्वल टू 1। सो अगर B1 इज इक्वल टू 1 है तो ये स्विच क्या हो जाएगी क्लोज, B2 इज इक्वल टू 0 है तो ये ओपन रहेगी। अगेन B3 1 दिया है आपको तो ये क्लोज हो जाएगी, B4 भी 1 है तो ये क्लोज हो जाएगी। ओके, क्लोज हो जाएगी, उसका मीनिंग क्या है, VR by 2R, अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग I1, I2, I3 एंड I4। सो अगर ये स्विच क्लोज है सो I1 यहाँ पे मुझे मिलेगा, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो VR डिवाइड बाय VR बाय R ही होता है ना, I इज इक्वल टू क्या, तो V बाय R, सो इट इज a VR बाय 2R। इसका क्या होगा VR बाय 4R, I3 का क्या होगा VR बाय 8R। लेकिन कब, जब यहाँ पे 1 दिया हुआ है तब। अगर कोई भी स्विच ओपन है तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस I1 बिकॉज I1 यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। एंड दिस व्हाट इज दिस IT, IT इज एडिशन ऑफ ऑल दिस। वो एडिशन कौन करेगा, समिंग एम्पलीफायर। ये एक्चुअली इट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद सम ऑल द करंट, जिसकी वैल्यू क्या है, बीट की वैल्यू 1। अगर इसे बी आपको दिया है 1 1 0 0 तो I1 एंड I2 क्या होंगे 1, सो I1 प्लस I2 विच इज योर IT। एंड इफ इट IT मल्टीप्लाई विथ RF which give you the output voltage, so this binary value converted into output voltage। okay, switching is important। B1 1 है तो वो स्विच क्लोज रहेगी, मतलब I1 यहां से पास होगा। okay, and this IT addition of current multiply with RF which give you V0, it is your analog output। डिजिटल इनपुट आपने दिया, एनालॉग आउटपुट आपको मिला। सो एंड बाइनरी वेटेड रजिस्टर यहाँ पे यूज किए, देखिए
2R, 4R, 8R, 2 raised to NR and binary bits there है. So it is a binary weighted resistor A to D converter, A to D converter. यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है. अगर स्विच ऑन है तो क्या होगा, VR by R. R मतलब जो भी वेटेड रेजिस्टर की वैल्यू है कि 2R है या फिर 4R है. स्विच ऑफ है तो करंट क्या हो जाएगा, 0. एंड लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, IT. तो एडिशन ऑफ ऑल द करंट्स, आइदर वो 0 है या फिर 1 है. यहाँ पे माइनस क्यों आया, V0 माइनस IT/RF, इसीलिए क्योंकि ये हम है ना नेगेटिव टर्मिनल में दे रहे हैं. आप जो एडिशन दे रहे हैं IT, वो कहाँ पे दे रही हूँ मैं, इन्वर्टिंग. इट इज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अगर आप इनपुट है वो अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल में देते हैं सो इट इज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अगर मैं प्लस में देती हूँ सो इट इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ओके, ये एक्चुअली इसी वाला जो स्टूडेंट होते हैं ना उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स. This op-amp, it is covered in this advanced electronics. Okay, it is simply summing amplifier. उतना याद रखो फिर भी चलेगा. करंट का एडिशन करेगा and after they multiply with RF which give me V0. तो माइनस पे दिया, that's why I just take the I. Simply IT क्या था वो लिखा RF. Okay, ultimately I1 क्या है, तो एक तो B1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है and VR by 2R क्या है, I1 is equal to VR by 2R, I2 is equal to VR by 4R, I3 is equal to VR by 8R and every bit is multiply with this. ठीक है, तो अगर मैं VR by R को बाहर निकाल लेती हूँ और ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज था RF is equal to अगर R कर देती हूँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. B1 is equal to क्या हो जाएगा इन ब्रैकेट, अगर मैं VR by R को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, B1 by 2. B1 by 2 तो अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे so it is a 2 raised to minus 1. In this way you can design. After that if we take RF is equal to R, so R and R दोनों कैंसिल हो जाएंगे, so we just find the last equation. ये इक्वेशन थ्रू आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि 1 1 0 0, तो 2 raised to minus 1 plus 2 raised to minus 2 into VR की वैल्यू वो मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज. ओके, सो बीट सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली दिस बीट कन्वर्टेड इनटू एनालॉग. Okay, now why we are using the second R2R ladder compared to this method? These are the drawback. First of all drawback क्या है कि अगर मैंने 8 बिट का DSC लिया है तो फर्स्ट रेजिस्टर की वैल्यू 2R होगी एंड लास्ट की क्या होगी, 2 raised to R, 2 raised to 8R. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या वैल्यू 2R, उसके बाद इंक्रीज हुआ 4R, उसके बाद 8R अप टू 2 raised to NR. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है कि लार्जेस्ट रजिस्टर, जो लास्ट रजिस्टर रिक्वायर 128 times greater compared to smallest one. So this wide range of resistor value has a restriction on both higher and lower end. What is the restriction? It is impractical to fabricate this large value resistor in IC, क्योंकि अल्टीमेटली आपको IC एक्चुअली इसकी IC ही आती है, इसकी कोई सर्किट नहीं आएगी. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उसकी अलग से IC आती है. क्या आती है, IC. वो IC अगर आप फिट कर देंगे अपने लाइक जो भी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल. सो टू फैब्रिकेट इन IC इट इज इम्प्रैक्टिकल टू अकोमोडेट ऑल वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर. ओके, एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या, सो अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ स्विच, हमने स्विच यूज की है, उसका रेजिस्टेंस अगर कुछ भी है तो वो किसके साथ ऐड होगा, जो हमने 2R लिया है उसके साथ. So ultimately it affect the accuracy. Okay, so because of this drawback, especially the requirement of wide range of resistor restrict the use of binary weighted resistor below 8 bit. Okay, क्या बोला है आपको, 8 बिट के बाद इसका यूज नहीं करना. ओके, किसका, दिस वेटेड रजिस्टर का, क्योंकि वो क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर चाहिए उसको, तो 8 बिट तक ठीक है, उसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा लार्जेस्ट रजिस्टर चाहिए, विच इज इम्प्रैक्टिकल इनटू फैब्रिकेट इनटू योर आईसी. ओके, सो नेक्स्ट वन इट इज R2R लेडर. हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वो R2R लेडर D2A कन्वर्टर. ठीक है, फर्स्ट वन उसके ड्रॉबैक आपको पता चल गया. ड्रॉबैक क्या है कि वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर मतलब लार्ज रजिस्टर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो R2R लेडर क्या करेगा, सिंपली आपको और भी बता देती हूँ. वो एक लेडर को यूज करता है 2R R 2R, ये जो पूरा सेक्शन है वो रिपीट होगा 2R R 2R 2R R
2R means it is considered as R2R ladder, first ladder, फिर second ladder, फिर third ladder up to n ladders. So यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू दो ही है आपके पास, R and 2R, 4R, 8R, ऐसे कुछ भी नहीं है. Okay, so because of this it is a like easy to like implement, and speed is also good because a higher range of resistor नहीं है, as well as it is a compared to less complex compared to first one also. इसके भी एडवांटेज आएंगे. ठीक है, तो ये हमने कौन सा किया, वेटेड रेजिस्टर D2A कन्वर्टर. ओके, उसके ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताए. वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टर चाहिए, उसमें लार्जेस्ट रेजिस्टर चाहिए, एंड फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ स्विच, वो दोनों क्या उसके ड्रॉबैक है, विच वी हैव ओवरकम बाय यूजिंग R2R ladder D2A converter in your next lecture, which is covered by Tejal madam. Okay, up to this point if you have any doubt then please ask.